Okay, so question number 16 up to 15 we have done in the last lecture, right? तो 15th में क्वेश्चन है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन. तो एनर्जी एसोसिएटेड with the first orbit means E1 is given to you. It is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule per atom, right? Now, what is the energy associated with the fifth orbit? तो आपको एनर्जी किससे निकालनी है? Associated with the fifth orbit. So energy associated with the fifth orbit we have to calculate. So energy in the fifth orbit that is equal to E1 divided by n square. जैसे En निकालना हो ना बेटा, En, so that is equal to E1 divided by n square. So E1 is given to you minus, so E5 जो है E1 की वैल्यू पुट कर दो minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 जूल, और n कितना है 5, so 5 स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इसको minus 218/25 कर लो, ठीक है ना. तो इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा minus 20 जूल पर एटम. That means it is equal to minus 8.77 into 10 raised to power minus 20 joule per atom. So this is the first question. ठीक है, कहना एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू यू. सो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? तो फिफ्थ ऑर्बिट मींस nth ऑर्बिट के लिए क्या होती है E1 अपॉन n स्क्वायर. तो E5 क्या हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आती है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास. सेकंड है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. तो आपको पता है रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू Bohr's radius R0 into n square और डिवाइड बाय z होता है, बट क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है तो इंटू n स्क्वायर होगा सिर्फ, और R0 कितना होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. ठीक है ना. और अपने को पूछा है फिफ्थ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट इज 0.529 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. मींस 0.529 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम. तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम. सो ये आ जाएगा वैल्यू. ठीक है, 13.225 एंगस्ट्रॉम. यस बेटा, एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 17. Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. Say longest wavelength transition. Longest wavelength means, you know what is the relation between energy and wavelength? Energy equal to h nu equal to hc over lambda. So longest wavelength means lowest energy.
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज में N1 क्या होता है? यस बेटा, व्हाट इज N1 फॉर बाल्मर सीरीज? फॉर बाल्मर सीरीज N1 इज, yes beta, what is N1? For Balmer series N1 is 2. So electron comes from any higher level, 3, 4 or 5. So lowest energy transition is 3 to 2. For longest wavelength transition in the Balmer series, N2 is equal to 3, right? So now just apply the formula. Wave number equal to 1 upon lambda, that is equal to 1.09677 into 10 raised to power 7 per meter into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो वेव नंबर कम्स आउट टू बी 1.09677 into 10 raised to power 7 per meter into 1 upon 4 minus 1 upon 9. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1.09677 into 10 raised to power 7 per meter. एलसीएम आ गया 36 और ये 9 minus 4. तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1.09677 into 10 raised to power 7 per meter into 5 upon 36. तो वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी, इसको मैं 5 upon 36 है ना, तो इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और 50 मींस ये वैल्यू जो आएगी इनटू कर दो 10 raised पर 6, तो ये वैल्यू आएगी 1.523 into 10 raised to power 6 per meter, that is wave number. तो ये आ जाएगा अपना वेव नंबर. यस, सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन मींस ऑफ द डे, 17th मतलब for today 16th and then 17th. Now 18th question. What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? Means N1 is 1, N2 is 5. And what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? अब फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा तो आपको पहले तो निकालना है कि कितनी एनर्जी चाहिए फर्स्ट से फिफ्थ में जाने के लिए. N1 इक्वल टू 1 से N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 5 में जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? सो एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required is equal to E5 minus E1, राइट? फिफ्थ में कितनी एनर्जी होगी और फर्स्ट में कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड. नाउ E5 क्या होता है? E1 अपॉन, क्योंकि En जो है दैट इज E1 अपॉन n स्क्वायर, राइट? सो E1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस E1, तो E1 कॉमन 1 अपॉन 25 माइनस
ओके E5 माइनस E1, सो एनर्जी जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो तो आ गया माइनस में, है ना। ओके कोई बात नहीं, E1 जो है वो माइनस होता है ना, तो E1 इंटू 25 अपॉन 1 माइनस 25, that is minus 24 over 25 into E1, that is delta E, and E1 is given to us, so it is 24 over 25 minus 2.18 into 10 raised to power minus 11 ergs, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 इंटू 2.18 बाई 24, सॉरी 24 over 25 into 10 raised to power minus 11 ergs, तो जस्ट कैलकुलेट करो इसको, 2.18 into 24 divided by 25, so it is very close to 2.1, means 2.09 into 10 raised per minus 11 ergs, और अगर जूल में करनी है तो यू नो 1 erg जो है 1 joule 10 raised per 7 ergs, that implies 1 ergs 1 erg equal to 10 raised per minus 7 joule, so delta E कितना हो जाएगा 2.09 into 10 raised per minus 11 into 10 raised per minus 7 joule, means 2.09 into 10 raised to power minus 18 joule, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। अब एनर्जी रिक्वायर्ड के बाद क्या निकालना है, वेवलेंथ, है ना, ऑफ द लाइट एमिटेड, दैट इज स्टेप 2। तो स्टेप 2 में wavelength of the light emitted when electron fall back from fifth to first, तो डिफरेंस इन एनर्जी तो यही रहेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी रिलीज होगी, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा E एंड lambda, so delta equal to hc over lambda, lambda is equal to hc over delta E. Now h we know, h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, c 3 into 10 raised per 8 meter per second, और डेल्टा E जो है वो है 2.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में, और वैल्यू आती है 9.50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 मीटर। That implies it is 950 into 10 raised to power minus 10 मीटर, और 10 to minus 10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, so 950 एंगस्ट्रॉम, so lambda is equal to 950 एंगस्ट्रॉम। Yes beta, any doubt in this question? Good. Next question, the electron energy in hydrogen atom, it is given to us कि इस तरह से होती है, अभी किया भी हमने, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट इज माइनस 2.18 into 10 raised per minus 18 divided by n square joule. Now
Calculate the energy required to remove an electron completely from n equal to 2. So देखो n equal to 2 से अगर रिमूव किया तो जाएगा कहाँ वो? Yes बेटा, tell me where it goes. Yes, very good. Infinity. n1 2 है तो n2 क्या होगा? Infinity. तो हमें एनर्जी चाहिए, उसको आयोनेशन एनर्जी भी बोलते हैं हम, है ना? एनी हाउ इसने उसको आयोनेशन एनर्जी नहीं बोला है, हम डेल्टा ई लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रिमूव्ड, सो ई इंफिनिटी माइनस ई टू, ये चाहिए हमें। ये पूछा ना, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज ई इंफिनिटी माइनस ई टू, एंड व्हाट इज द एनर्जी एट इंफिनिटी? वेरी गुड, so it is actually minus E2. So delta E equal to minus E2. And what is the value for E2? So minus and minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule divided by 2 whole square, because n is 2 here. तो ये हो जाएगा बेटा 2.18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 18 जूल, मीन्स 21.8 बाई 4 इंटू 10 रेज पर, बोलो माइनस 18 या माइनस 19 या माइनस 17? टू 2.18 को हमने 21.8 कर दिया है, बढ़ा दिया है। यस, -19, ठीक है। तो इतना जूल हो जाएगा, मींस 4 21 इसको 8 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5.45 इंटू 10 रेज टू पर माइनस 19 जूल। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन? सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट एक ही वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो डेल्टा ई, सेकेंड पार्ट इज, you know delta E equal to hc over lambda, so lambda equal to hc over delta E, तो h 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, c की वैल्यू 3 into 10 raised power minus 8 मीटर पर सेकेंड, divided by delta E, and delta is 5.45 into 10 raised per minus 19 जूल। सो लैम्डा पहले मीटर में निकाल लेंगे हम, तो लैम्डा जो मीटर में आएगा दैट इज 3.644 into 10 raised to power minus 7 मीटर, बट पूछा है इन सेंटीमीटर, तो 3.644 into 10 raised per minus 7 into 10 raised per 2 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हो जाएगी 3. यस बेटा 5 सेंटीमीटर, 3.644 और 645 जो भी आता है इंटू 10 रेज पर माइनस 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम कंसेप्ट करेंगे अगला, क्वांटम नंबर्स एंड ऑल। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 into 10 raised per 7 मीटर। सी वेवलेंथ इज, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेलोसिटी दी हुई है, बट वेलोसिटी किसकी दी है? इलेक्ट्रॉन की, और वेवलेंथ किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ होगी बोलो? इट इज wavelength associated with the particle, so it is actually de Broglie wavelength,
वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू, नहीं, ओके, h अपॉन mv, कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो m that is mass of electron and it is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. V given to us, h we know, h is Planck's constant and its value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. So lambda आ गया बेटा 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second divided by mass आ गया 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। मैंने आपको बोला था यूनिट सेम रखनी है, अगर आप SI यूनिट यूज कर रहे हो तो सबकी SI यूनिट ही यूज करनी है। तो ये आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 3.55 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें भी हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ओके बेटा, तो इतना ही करते हैं आज, है ना। वेलकम बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल। और आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहें। हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल हैं, टेक्स्ट हैं, सब करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ हम जेई और नीट के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज भी करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और बाकियों को भी जोड़े, ये मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है। और मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे और एक फ्री एजुकेशन का, एक ये फ्री स्कूलिंग हो जाएगी हर एक के लिए। एंड माय एम इज टू मेक इट फ्री स्कूलिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग। और आगे मैं ऐसे लाइव सेशन करने वाला हूं जिससे कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो, हर एक बच्चे को मतलब ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं इस प्लेटफॉर्म को बना दूंगा। और उसके लिए आप सबकी साथ चाहिए, और हम एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें फ्री एजुकेशन हो सकती है, ठीक है। मुझे इससे कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं करनी है, बट मुझे एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म, मुझे पता है बच्चे, चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चे हों, बट मैं उसी जोश से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जो फ्री एजुकेशन है वो रेयर हो जाएगी, कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा, बट आई विल डेफिनेटली डू दिस। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने क्लासमेट्स में शेयर करो कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म जो कि फ्री एजुकेशन देने के लिए रेडी है, जस्ट ज्वाइन इट। रोज 8 से 9 मंडे टू फ्राइडे वी हैव अ क्लास फॉर 11th एंड 6 to 7 फॉर क्लास 12th। ये हर रोज मंडे टू फ्राइडे ये शेड्यूल है, सो प्लीज नोट डाउन। 8 से 9 11th और 6 से 7 इवनिंग जो है वो 12th। ओके, हेलो बेटा। So do join and ask others to join with me
ताकि हम एक ऐसा बना सकें प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब आई एम ग्रेट हु इज दिस may know who is this thank you so much so to be with me we will definitely do the wonder in the coming time और हम 101% है कि इस फ्री एजुकेशन को ऐसे फैलाएंगे कि कोई भी ट्यूशंस के लिए ना जाए मेरा तो यही एम है क्योंकि ट्यूशन इतने महंगे होते जा रहे हैं आई नो मेरी बेटी 6th में है तो ओके अनिक बेटा आपकी क्लास जो है 6 से 7 होती है 12th की क्लास और 11th की क्लास 8 से 9 ये मेरा शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे और आपको मैं आउट ऑफ वे जाके भी हेल्प करूंगा एंड आई वांट टू डू दिस नो डाउट कि अभी तक हमारे इस पे ट्रैफिक कम है मेरे प्लेटफॉर्म पे बट ये बढ़ेगी धीरे धीरे जब सबको क्लियर होगा कि कहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है मैंने पहले 5 साल में आकाश में था उसके बाद मैं अलग अलग स्कूल्स में था डीपीएस में पोदार इंटरनेशनल स्कूल में फिर अपने केंद्रीय विद्यालय में और अब मैं कॉलेज में हूँ बट स्कूल टीचिंग आई लव बिकॉज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन दे आर वेरी इंथू टू नो मोर और उसके लिए मैं ये ओ माय गॉड यू आर फ्रॉम लद्दाख व्हाट इज योर नेम आई रियली अप्रिशिएट कि बेटा मैं हिमाचल से हूँ कांगड़ा से हूँ बट आप तो जन्नत में हो so you are in 11th Dilwar Ali okay so you are in class 11 so सब क्लासमेट्स को बोलो कि let us join hand together and let's have a free education okay सुनियो you love chemistry and physics that's great okay बेटा तो be with me आपका सेशन होता है 8 से 9 मंडे टू फ्राइडे और हम हर एक कंसेप्ट और एक्सरसाइज करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म और इवन नीट और जेई के क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर सारे ठीक है और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल वी विल डू ठीक है इट विल कंटिन्यू अप टू योर जेई एंड नीट पेपर हाँ बेटा आई वॉज इन आकाश फ्रॉम 2003 to 2008 आई वॉज इन अमृतसर आकाश इंस्टीट्यूट और उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाए थे अब मैं कॉलेज में हूँ और पर मैं जो स्कूल टीचिंग है आई लव इट इसलिए ये टीचिंग तो मैं कंटिन्यू रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े साथ में ताकि मेरी कम्युनिटी ग्रो हो क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती है फिर भी मैं तो लगा रहता हूँ मैंने
अभी तक ऐसा सोचा नहीं कि ट्रैफिक नहीं है, मतलब बच्चे कम हैं। चलो मैं, हाँ बेटा, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं बेटा, डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन स्टडी, है ना, एट प्रेजेंट। उसके बाद हम उन पे आएंगे सारे कि कहाँ से कैसे करना है ना। ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और आई होप कि you will definitely share my channel with your friends and classmates and in communities. Okay, Sunil, thank you so much, Anik. So Anik, you are from where? अच्छा, आपका नाम दिलवर अली है ना? क्या नाम है वो, डैडी दिलवर अली है ना? और श्योर डेफिनेटली अनिक, वी विल मीट, ठीक है, वंस, डेफिनेटली वी विल मीट, ओके। सो नाउ मैं रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। ओके, वेस्ट बंगाल, दैट्स ग्रेट। भालो माछो कुछ ऐसा सा बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, तो रखता हूँ मैं अब, अनिक, दिलवर अली, एंड वन मोर इज देयर, हु इज दिस? दिलवर अली, हम आएंगे, घूमने आएंगे, अगर ऐसा मीन्स पढ़ाने, तो लद्दाख तो है, लद्दाख आएंगे हम जरूर, आपके घर पे रुकेंगे और आपको पढ़ा भी देंगे और आप घूम भी लेंगे आपका इलाका, ठीक है। अच्छा, और दो लोग और कौन है ये? जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर अनिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कारगिल, माय गॉड, जरूर आएंगे बेटा, भगवान ने चाहा तो। पता नहीं मेरे इसको क्या हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ मेरे वीडियो को। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो प्लीज। अच्छा, विजय दिवस वहां हो रहा है कारगिल में? ओके, श्योर देवरी, अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, बट डेफिनेटली कभी आऊंगा जरूर, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड kindly share my channel with all of your friends and in community like Facebook, WhatsApp, just share with all. Okay, bye bye. कोई बात नहीं, कलकत्ता भी आ जाएंगे बेटा, हमें सब घूमना है, अभी तो कुछ घूमा ही नहीं है मैंने, तो जरूर। कारगिल पाकिस्तान और विजय, हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है इतना तो। ओके, मिलते हैं मंडे फॉर 12th फ्रॉम 6 to 7 and for 11th 8 to 9, ठीक है। बाय बाय बेटा, एंड सपोर्ट माय फ्री एजुकेशन ड्राइव, ताकि हम फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सकें।
बाय बाय। हाँ, और 12th का हम D&F ब्लॉक का जेई और नीट का करेंगे अब, ठीक है। जेई और उसका क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, D&F के कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन आंसर से करवा दिया है। अब हमें D&F ब्लॉक के क्वेश्चन करने हैं। सेम हियर दिलवर अली, चलो बाय बाय।